آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے بچوں آپ اپنی اسٹڈیز کو اچھے طریقے سے جاری کیے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مضمون ہے مطالعہ پاکستان برائے جماعت 12ویں ہے ہمارے پاس۔ ہمارا جو چیپٹر ہے یعنی باب ہے وہ اول، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے 6۔ گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا تو اس میں سے ہم نے شملہ وفد اکتوبر 1906 اور مسلم لیگ کا قیام ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے خلافت مومنٹ یعنی تحریک خلافت، ٹھیک ہے، جس کی ہم نے سارا جو ہے پڑھنا ہے ٹاپک کو، آج ہم نے اس کو پڑھنا ہے، جس کا اثر کیا تھا، یہ کیوں بنائی گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، وہ سارا کا سارا ہم نے جو ہے وہ اس میں پڑھنا ہے، اور اس کی اہمیت کیا تھی وہ بھی ہم نے آج دیکھنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 15 پہ، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے تحریک خلافت۔ سب سے پہلے آپ کو جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری ہیڈنگ ہم نے 1 بائی 1 کر کے اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہے، یعنی ہم نے 1 بائی 1 اس کو پڑھنا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کتاب کو جو ہے سامنے رکھیں، ساتھ میں اپنے ساتھ جو ہے رجسٹر وغیرہ رکھیں اور اپنے پوائنٹس کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس پس منظر، ٹھیک ہے۔ کہ اس کا جو آغاز ہوا تھا یعنی جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی تھی 1914 میں، تو خلافت عثمانیہ جو ہے ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ ان کا یہ فیصلہ کے لحاظ سے بالکل درست بھی تھا، کیونکہ اس سے پہلے ترکی جو تھے انگریزوں کی سازشوں کی وجہ سے جنگ بلقان اور اسی طرح اور جنگوں میں شکست کھا چکی تھی، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ جرمنی کا ساتھ دیا تھا ترکی نے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، مسلمانوں کی کیوں پریشانی تھی، کیونکہ جب ترکی نے جرمنی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو انگریزوں نے ترکی کے خلاف جو ہے وسیع پیمانے پر جنگی کارروائیاں شروع کر دی تھی، جس کا اثر ہندوستانی مسلمانوں پر اس طرح ہوا کہ انہوں نے ترکی کو مسلمان ریاست سمجھتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کیا اور حکومت برطانیہ سے ترکی پر ظلم و ستم بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب انگریزوں نے دیکھا تو وہ کیا، انہوں نے اپنی جو روایت تھی انداز مکاری کی وہ شروع کر دی تھی۔ انہوں نے جو ہے انگریزوں نے برصغیر کے مسلمانوں سے اس بات کا وعدہ کیا کہ انگریزوں کو جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل ہوگی تو وہ ترکی کی خلافت کو برقرار رکھیں گے اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور مسلمانوں کے جو ہے مقدس مقامات کو اسی طرح رکھا جائے گا، لیکن یہ صرف ان کا مقصد جو تھا وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کا تھا، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کی، باقی ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے جنگ میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی تو اس کے بعد تمام وعدے جو انہوں نے کیے تھے وہ توڑ دیے۔ اس وعدے خلافی پر مسلمانوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور خلافت ترکیہ کی جو ہے حفاظت کے لیے تحریک شروع کر دی، جسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ اس کا جو دوسری ہیڈنگ ہے جو ہمارے پاس ہے مجلس خلافت کا قیام۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے کیا کیا کہ مجلس خلافت کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی 1919 میں، اور اس نے ایک عظیم الشان خلافت کانفرنس کا اہتمام کیا جس کی صدارت جو ہے وہ مولوی فضل الحق نے کی۔ پھر اسی کمیٹی نے جو ہے مختلف قراردادیں پاس کی، جس میں سے سب سے پہلے قرارداد جو تھا وہ ہے مقدس مقامات کی حفاظت، یعنی ترکی کے مقدس مقامات جو ہیں وہ اس کی حفاظت کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی حفاظت کی جائے گی اور ترکیوں کی حفاظت اور نگرانی میں رہے گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ترک معاملات کرنا، یعنی چھوڑ دینا سب کچھ، جو آپس میں میل ملاپ ہے وہ چھوڑ دینا۔ حکومت برطانیہ پر مسلمانوں کے جذبات کا اظہار کے لیے لازم ہے کہ ہندوستان میں ان سے مکمل طور پر جو ہے وہ ترک موالات کیا جائے تاکہ وہ اپنے ناپاک ارادوں سے جو ہے وہ باز رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا گیا۔ خلافت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جائے، یعنی انہوں نے یہ قرارداد بھی پاس کی کہ خلافت کے منصب کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا اور اسے ختم نہ کیا جائے گا، اور ترکی کی سلطنت کو جو ہے اس کی حدود وہی رہی جائیں گی جو جنگ سے پہلے تھی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو خلافت وفد ہے ہمارے پاس، تو دسمبر 1919 میں آل انڈیا کانفرنس اور مجلس خلافت کے مشترکہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفد جو ہے وہ تشکیل دے کر اسے انگلستان بھیجا جائے گا۔ یہی وفد دیگر یورپی ممالک کا دورہ بھی کرے گی اور اپنے مطالبات جو ہے حکومت برطانیہ اور دیگر اتحادی جو ممالک ہیں ان کے سامنے پیش کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خلافت وفد میں تھا۔ پھر اسی طرح خلافت وفد کی جو قیادت تھی وہ کس نے کی، اس میں حسن محمد کو خلافت وفد کا سیکرٹری بنایا گیا، اور وفد کی جو سربراہی تھی اور قیادت تھی وہ جو ہے وہ مولانا محمد علی جوہر کو جو ہے وہ دی گئی تھی، جن کا کام صرف اور صرف مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کی صحیح ترجمانی کرنا تھا۔ اب اس کے مقاصد کی طرف آتے ہیں۔ تحریک خلافت کی جو ہے مندرجہ ذیل 3 بنیادی مقاصد تھے۔ وہ کیا تھا، یعنی خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھا جائے گا، ترکی کی علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے گا، اور حجاز جیسے شام ہو گئے، فلسطین اور عراق جہاں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں
वहाँ उन्हें गैर इस्लामी इक़दार से महफूज रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो इसके जो है मकासद में आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है क्या है, अदम ताउन की जो तहरीक शुरू हुई थी वो क्या थी कि तर्क मौलाद यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुई थी, ठीक है ना, उसके बारे में है। 1920 में तहरीक खिलाफत में ऑल इंडिया कांग्रेस ने भी जो है मुसलमानों को पूरी तरह साथ दिया था, ठीक है ना। इसमें जो है वो महात्मा गांधी जो थे वो बड़ी सरगर्मी का मुजाहरा कर रहे थे। अगरचे महात्मा गांधी जो है वो का ताउन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मफादात के पेश नज़र था, लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे थे। हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद की ये फिजा जो थी वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक खिलाफत के नतीजे में कायम हुई थी, अंग्रेज़ों के हक में ना थी, ठीक है ना। गांधी ने अदम ताउन जो है वो तहरीक का ऐलान किया था, जिसके दौरान जो है उन्होंने मुख्तलिफ जो खिताबात थे वो वापस कर दिए थे। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजी माल के मुकम्मल जो है खरीदने का बायकॉट कर दिया, अंग्रेजी स्कूल से अपने बच्चों को उठाना शुरू कर दिया था, वकला ने वकालत का जो है वो छोड़ दी थी, और इसी तरह सरकारी मुलाजमीन ने मुलाजमतें छोड़ दी थी, ठीक है ना। यानी बरसगीर के ऐसे लोग जिन्होंने बरतानी हुकूमत से बरतानी हुकूमत ने उन्हें खिताबात दिए थे, वो उन्होंने खिताबात जो है वापस कर दिए थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी वो तमाम तमगे जो बरतानी हुकूमत ने उन्हें अता किए थे, यानी उनको दिए थे, वो वापस कर दिए थे, ठीक है। इसी तरह फिर इन्होंने क्या किया कि फौजी मुलाजमत जो है वो इख्तियार न करने की तरकीब भी दी। यानी 8 जुलाई 1921 को जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे कायदे तहरीक खिलाफत जो थे, उसने कराची में ऐलान किया और 500 उलमा ने तकरीबन उस पर दस्तखत करके एक फतवा जारी किया था, जिसका मकसद जो था वो अंग्रेजी फौज में मुसलमानों की भर्ती को नाजायज़ और हराम करार दिया था। इसी तरह सरकारी तकरीबात को जो है वो बायकॉट किया गया। यानी हिंदुस्तान के जो लोग थे उन्होंने सरकारी तकरीबात जितनी भी थी उसका मुकम्मल तौर पर बायकॉट करना शुरू कर दिया था, और इसी तरह हुकूमत को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इसमें से जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी है। ये तहरीक खिलाफत वो आखिरी मौका था, याद रखिएगा, वो आखिरी मौका था जिसमें हिंदू मुसलमान जो है वो यकजहती और इत्तेहाद और इत्तेफाक की सूरत में जो है इनके दरमियान जो है वो पैदा हुई थी। लेकिन ये जो सिर्फ फिजा थी ये ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी और जल्द ही ख़त्म होकर रह गई। इसी तरह इसका जुदा फिर क्या हुआ इसमें कि तहरीक हिजरत अफगानिस्तान भी जो है वो इवेंट हुआ था, जब खिलाफत वक्त इंग्लिस्तान से वापस नाकाम आया, ठीक है ना। तो उस टाइम में जो है क्या किया इन्होंने कि 1920 में हिंदुस्तान से एक हिजरत का एक फतवा जारी किया, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दिया गया था। चुनांचे मुल्क भर से और खसूसन सरहद से जो है वो बहुत ज़्यादा मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें और जो माल असबाब थे वो बहुत ही कम कीमत में मकामी हिंदुओं के हाथों फ़रोख्त करके हिंदुस्तान जो है वो हिजरत कर गए थे, लेकिन अफगान हुकूमत ने उन्हें अपने इलाके में दाखिल होने से रोक लिया था। तो इसी तरह ये मुसलमान जो है बहुत ही बुरी हालत में वापस लौटे। इस तरह यहाँ से ये तहरीक जो है वो नाकामी की इब्तिदा तो पहुँच गई। इसी तरह अब हम आते हैं आगे, जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है तहरीक खिलाफत और कायदे आज़म, ठीक है ना। तो तहरीक खिलाफत का जब आगाज़ हुआ तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आप को इस तहरीक से बिल्कुल अलग रखा था, क्योंकि कायदे आज़म जो है वो मामलात को जज्बाती अंदाज में लेने की बजाय जो है वो हकीकत पसंदाना तरीके से जो है इसको देखने की आदी थे। वो तहरीक के बारे में जो है वो खुशफहमी में मुब्तला नहीं थे। इसी तरह तहरीक जो है उसका खात्मा कैसे हुआ कि तहरीक खिलाफत जो है काफ़ी अर्से तक जोश व खरोश के साथ जो है वो चलती रही, लेकिन अंग्रेज़ जो है वो बेबस होकर रह गए थे यहाँ पर, और ऐसा मालूम हो रहा था कि अंग्रेज़ अब ज़्यादा अर्से तक जो है वो हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत है वो उसको बरकरार नहीं रख सकेंगे। और बरतानी हुकूमत जो है, लेकिन अचानक जो है वो बरतानी जो डिप्लोमेसी है वो हरकत में आ गई थी, और हुकूमत हिंद ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के खात्मे के लिए जो है वो काम करना शुरू कर दिया था। इसी तरह फिर हमारे पास है मोकला बगावत। यहाँ पे जो है मोकला बगावत में यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है उस टाइम में जोरों पे थी, तो एक नाखुशगवार वाक़या जो है यहाँ पे पेश आया था। यहाँ अरबी नस्ल लोग जो थे वो आबाद थे, यानी जिन्हें मोकला कहा जाता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है इन लोगों की बहुत ज़्यादा कसरत थी मालाबार में, तो उन्हें मज़हब की जो है मज़हब से बहुत ज़्यादा जो है जुनून की हद तक लगाव था। ये चाहते थे कि ये लोग जो है हुकूमत चाहती थी कि ख़ास तौर पर ये लोग जो है वो तहरीक से अलग थलग रहें। इस हुकूमत ने इनके इलाके में जलसे जुलूसों पर जो है वो पाबंदी लगा दी थी। इनके लीडरों को जो है वो ज़्यादातर जेल में बंद कर दिया था, इन्हें गिरफ्तार कर दिया था, और हुकूमत के इस रवैये पर जो है ख़ासतौर पर मोकलों में जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हुई। उन्होंने अपने लीडरों की रिहाई का मुतालबा किया और पुलिस ने मुदाखलत की, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर फसादात शुरू हो गए थे। तो इसी तरह जो है पुलिस ने जब मुदाखलत की, उन्होंने जो है वो गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तकरीबन 400 से ज़्यादा अफराद जो है वो इसमें मारे गए थे। इससे इलाके में बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा हो गया था, और मोगलों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी थी अपनी। इसी तरह चोरा चोरी का जब वाक़या हुआ था, जो कि हमारे पास एक गाँव है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1922 में सिविल नाफरमानी जो है वो उसी पैमाने पर शुरू की जाने वाली थी कि थोड़ी ही देर में जो है वो चोरा
थोड़ी का वाक़या पेश आया, ठीक है ना, कि फरवरी 1992 को लोगों ने इश्तिहार में आकर एक पुलिस की जो चौकी थी यानी उसको नजर आतिश कर दिया था, जिससे तकरीबन 21 सिपाही जो है वो जलकर मर गए थे। तो इस वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे और यूँ मुसलमान जो है यानी गांधी जो है वो भी अपने आप को बस अब उन्होंने अलग करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने जो है इस तहरीक को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इसी तरह 1992 में मुसलमानों हिंदू का ताउन जो है वो ख़त्म होकर रह गया और मुसलमान जो है वो तनहा रह गए। इसी तरह अब तहरीक को कामयाबी से जारी रखना बड़ा मुश्किल था, ताहम तहरीक जो है उस वक्त दम तोड़ चुकी थी जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल जो थे, कमाल पाशा ने जो है 1942 में खिलाफत को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और पूरे मुल्क में जो है वो जमहूरियत करार दिया था। इसी तरह अगर हम देखें तो इसके नाकामी के असबाब क्या थे, तो उसमें भी बहुत सारे वजूहात है। इसमें जो गांधी थे उसका जो है वो मौका परस्ती उसकी बहुत ज़्यादा थी, यानी एक मामूली से वाक़े को उन्होंने बहाना बनाकर अपने आप को जो है वो इस तहरीक से हिंदुओं को इस तहरीक से अलग कर दिया था। इसी तरह मुसलमानों की जो मिली क़यादत थी उसकी अदम मौजूदगी भी थी, यानी मुसलमानों के साथ जो है क़यादत का होना बहुत ज़रूरी थी, लेकिन मुसलमानों की क़यादत जो है वो अदम मौजूदगी में कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि मंजिल की निशानदेही वाला करने वाला कोई था ही नहीं। बिलाखिर तहरीक खिलाफत जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। इसी तरह अगर हम देखें तो तुर्की की जानिब से जो है खिलाफत के खात्मे का ऐलान कर दिया था, ठीक है ना, तो इस वजह से भी तहरीक जो है वो इसी तरह नहीं थी। ज़्यादातर इसमें जो है वो अफगानिस्तान से जो है बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए थे जब मुसलमानों ने वहाँ पे हिजरत की थी और मुसलमान वापस बहुत ही बुरे हालत में वापस लौटे और अक्सर जो है वो तहरीक से अलग होने लगे और आखिरकार ये तहरीक मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम होकर रह गई थी। तो इस तरह इसके बहुत सारे वजूहात हैं। अगर हम इसके असरात की तरफ देखें तो इसमें से जो हमारे पास जो है असरात हुए मुसलमानों पर वो क्या थे कि बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि उनमें जो है वो अंग्रेज़ों से मुकाबला करने की जरूरत पैदा हो गई थी। इसी तरह जो है वो सियासी खुद कफालत की जो है वो कोशिश उन्होंने शुरू कर दी थी, यानी सियासी शऊर उनमें पैदा हो गया था। अवामी कायदीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, यानी तहरीक खिलाफत ने बरज़ैत मुसलमानों को ऐसे कायदीन दिए जो कि अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते थे और मुसलमानों पर भरोसा भी करते थे। इसी तरह मुसलमानों की एक किस्म की सियासी तरबियत भी हो गई थी, ठीक है ना, और उलमाए कराम का सियासत में जो है वो उन्होंने हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया था। अगर हम मनफी असरात की बात करें तो मुसलमान जो है बहुत ही ज़्यादा बदहाली का शिकार होकर रह गए थे। मौशी लिहाज से मुसलमान हिंदू से पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, अब इसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो गए थे। इसी तरह जो है अंग्रेज़ों को यहाँ पे काफ़ी खुशी मिली, क्योंकि तहरीक खिलाफत की नाकामी से न सिर्फ मुसलमानों ने हिंद को आलमी सतह पर शर्मिंदा किया, बल्कि हिंदू तो खुद माली, इक़्तिसादी और ज़हनी तौर पर वो भी शर्मिंदगी का शिकार हो गए थे, ठीक है ना, इन मुसलमानों ने हिंद जो थे। तो अंग्रेज़ों को जो है खुशी मनाने का एक किस्म का मौका मिल गया था। इसी तरह अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो है वो भी खात्मा हो गया था। ये तहरीक खिलाफत के खात्मे के साथ ही हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद था वो भी ख़त्म होकर रह गया था और गांधी जी की असलियत थी वो बिल्कुल नुमायाँ होकर रह गई थी। तो इस तरह इसकी बहुत सारी वजूहात थी, ठीक है ना, इसके बहुत ज़्यादा असरात हुए मुसलमानों पर। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आज हमने तहरीक खिलाफत को पढ़ा, 1919 से लेकर 1924 तक जो था उसके बारे में पढ़ा, ताकि उस पर जो है क्या वजूहात थी, क्यों ये तहरीक शुरू की गई थी, इस तहरीक में वाक़यात क्या हुए थे, फिर इस तहरीक का मुसलमानों पे क्या असर हुआ, मुस्बत असर क्या था यानी पॉजिटिव असर क्या था, और इसी तरह मनफी जो असर हुआ वो क्या था। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आखिर में वही बात, जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। आपका बहुत शुक्रिया।